2002 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। 2004 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ +2 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। 2007ରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ କଟକ BSc ବଟନି ଅନର୍ସ +3 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। 2009ରେ PG MSc ଇନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 2009ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। 2010ରେ BED NKCCT ଅନୁଗୁଳ। 2010ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା। 9/2/2011ରେ BEDର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ BED 2011ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ସେଇ 2011 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ଘର ପାଖ ଅଷ୍ଟମରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। 6 ମାସର ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ହାଇସ୍କୁଲରେ TGT CBZ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ 2011ରେ 6 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲା। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ରେଗୁଲାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଦରମାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚାକିରି 15 ବର୍ଷ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମାଟ୍ରିକ +2 +3 BED এই 4টাଙ୍କର ମାର୍କ ମିଶିକିନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା OSSTET ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ OSTT ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଟେ ହେବେ ସେମାନେ OTET ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ବେଳକୁ OSTT ନଥିଲା। ଆମେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ OSTT ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ 2013 ପରଠାରୁ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ 2016 ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅନୱାର୍ସ ସେମାନେ OSTT କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଦିନଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କଲା ଏବଂ ଚାକିରି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ରେଗୁଲାର ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ବି ପାଇଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ OSTT ଦେଇନଥିଲୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମର OSTT ନଥିଲା, ମୁଁ OSTT କେବେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେନି। ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଟା ସମୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ OSTT ଦେବି ବୋଲି ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ OSTT ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି ଦେବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ 10ରୁ 4 ପରେ ଘରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ OSTTରେ ମୋର ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସେଟ୍ C କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ବୋର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ HSCର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି OSTT ବି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ମାଟ୍ରିକ ବା ଆମର ଯେଉଁ HSC 2026 ଆମେ ଦେବା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ OSTT କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଜଣେ 10ମରେ ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବ, ଯଦି 10ମରେ ତାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ବେସିକାଲି OSTTରେ କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି 20 ମାର୍କ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସର 2ଟା କାଟାଗୋରୀ TGT PCM ଆଉ TGT CBZ, ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର PCM ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର CBZ। ସାଇନ୍ସର 2ଟା କାଟାଗୋରୀ ଟିଚର, ଆର୍ଟ୍ସର ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀ ହେଲା TGT ଆର୍ଟ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ PCMରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ PCM ଟିଚର ସେମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ
ଏବଂ जो सीपीजेड टीचर से माने केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी तेणु एवं ता सहित पेडागोगी जोटा कि आमर रहुची बीडी रो सिलेबस सहित पेडागोगी हैला टीचिंग ऑफ साइंस से 50 मार्क पड़ू जेटा कंपलसरी पेडागोगी पार्टटा 50 मार्क समस्त पई समान ओडिया 20 मार्क समस्त पई समान इंग्लिश 20 मार्क समस्त पई समान किंतु जेहेतु मु टीजीटी सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रु 20 बहुत हार्ड पड़थिला ए वर्ष केमिस्ट्री क्वेश्चन हैला एवं जोतुरी मोर किछटा सिली मिस्टेक पाई भूल हेती 10टा ठीक रहितिला केमिस्ट्री पार्ट बुझिला मु तुमको देखेबी जे दशमर गोटे पिला एटे देख धर जो गोटे पिला नवम दशम पढ़ी बुझेगा साइंस सब्जेक्ट तार भल हो साइंस रो कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से भी यही दशमर पाठ केमिति ओएसटीटी रे भी सही क्वेश्चन टा आसुची क्वेश्चन इंग्लिश रे आसुची आमे पढुछ ओडिया रे तेणु आमको देइचे एटा देखो गोटे क्वेश्चन देइची व्हिच किंगडम डज इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स केउ किंगडम रे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स माने एकोकोशी हमर सुनास्टीय कोषर प्राणी अंतर्भुक्त ऑप्शन देइची मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमलिया ए चारिटा ऑप्शन मु बारंबार कहिची आमे ए दशम जो 50टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अछि प्रति क्वेश्चन रो चारिटा ऑप्शन तो आमे जेतले एग्जामिनेशन हॉल रे पसी जीवा ना क्वेश्चन टा पढला पर चारिटा ऑप्शन हमकु ठीक लागिबो सब गुरा ठीक बोली किंतु चारिटा भितरु गोटी हला सटीक ऑप्शन सेही सटीक ऑप्शन को मते चूज करिवार अछि मोनेरा मोनेरा होची गोटे प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा गोटे यूकैरियोटिक सेल एमिबा फंजाई एटा होची गोटे सैप्रोफाइट्स बुझिला एवं एनिमलिया बुझिला जो हमर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अछि तो को माने होची यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ना प्रोटिस्टा एकोकोशी एमिबा हैला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल माने तार गोटे न्यष्टि अछि हैला न्यष्टि स्पष्ट एवं सुसंगठित तेणु ऑप्शन ठीक ऑप्शन देला प्रोटिस्टा तेणु आमे ए क्वेश्चन का आंसर दे परिबा बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो हम दशमर फर्स्ट चैप्टर सहित रिलेटेड फोटोसिंथेसिस देछि व्हिच आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस केउ गुडी को होछि आलोक सेचन रो आलोक प्रक्रिया रो उत्पाद देखिलो पढछि देछि एटीपी एंड ग्लूकोज नेक्स्ट देछि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज थर्ड देछि एटीपी एनएडीएच एंड CO2 फोर्थ देछि एटीपी एनएडीपीएच एंड कोन O2 ताले तते प्रश्न हमकु देछि कोन आलोक सेचन रो आलोक प्रक्रिया रो कोइन गुडी को होछंदी उत्पाद आलोक सेचन रो आलोक प्रक्रिया रे कोन होइताए ना फास्ट जल रो आलोक विश्लेषण होइताए जल अणुटी भांगी किना गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर थाए तेन ऑक्सीजन गोटे प्रोडक्ट द्वितीय प्रोडक्ट कौन बाहर थाए ना एटीपी आ एनएडीपीएच तैयारी होइताए एटीपी प्लस कौन एनएडीपीएच आकु कहा जाए आलोक सेचन शक्ति तेन आलोक सेचन आलोक प्रक्रिया रे एटीपी आ एनएडीपीएच तैयारी होइताए ए एटीपी आ एनएडीपीएच मिसी आलोक सेचन शक्ति बा एसिमिलेशन पावर गठन करथांती तेणु कौन कौन प्रोडक्ट है देखो ना गोटे अम्लजान बाहर जलर आलोक विश्लेषण द्वितीय कौन बाहर एटीपी बाहर आ एनएडीपीएच बाहर ताले एई चारिटा ऑप्शन भितरु केउ ऑप्शन रे एई तीनटा अछंदी ताले ऑप्शन डी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनाइन हैला डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हैला एवं O2 तेणु ऑप्शन सटीक ऑप्शन कौन एटीपी एनएडीपीएच एंड O2 बुझिला ये होची कौन ना हमर ए जो आलोक सेचन रो उत्पाद नेक्स्ट क्वेश्चन ला देछि देखो व्हिच आर द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वड इन फोटो रेस्पिरेशन सहित केउ ऑर्गेनेल संपृक्त होइते फोटो रेस्पिरेशन कोठे होइते आमे दी प्रकार प्लांट पढिचे गोटेला C3 प्लांट गोटेला C4 प्लांट केल्विन साइकिल रे पढिचे C3 प्लांट आउ C4 प्लांट
ତା ସହିତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଆମେ ପଢିଛେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସ୍ ଆଉ କ୍ରେବ୍ ଚକ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ କିଏ ପେରୋକ୍ସିଜୋମ୍ ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ এই তিনোটিরে কোন হইতায় ফটো রেসপিরেশন হইতায়। जो ফটো রেসপিরেশন কোন হইতায় না এনার্জি কোন না এনার্জি ফর্মেশন হই থাকে বুঝিলা। তেণু ক্লোরোপ্লাস্ট পেরোক্সিজম আর মাইটোকন্ড্রিয়া এই তিনটারে কোন হইতায় ফটো রেসপিরেশন সম্পাদিত হই থাকে বুঝিলা। নেক্সট কোশ্চেন তুমি দেখাইবি দেখো জুলজি পার্টর কোশ্চিन ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ এই কোশ্চিन পড়িবার भी संभावना ଅଛି বুঝিলা। को কোশ্চিन টা ଦେଖଉଛି ଦେଖ না এই কোশ্চিন টা ଦେଇଛି ଦେଖ which is the longest phase of mitosis mitosis বা সমবিভাজনର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଅବସ୍ଥା କୋଉଟା। ସମବିଭାଜନରେ ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରୋଫେଜ মেটাফেজ আনাফেজ টিলোফেজ বুঝলা। আদ্য অবস্থা মধ্য অবস্থা উত্তরাবস্থা অন্তিম অবস্থা। তেণু আমার কোষ বিভাজন সমবিভাজন সমস্ত সমীয় কোষরে হয়ে অর্ধ বিভাজন জনন কোষরে হয়ে বুঝলা। সমবিভাজন আমার কোণ না গ্রোথ পাই সেল ডিভিजन ফল সমবিভাজন ফল কোষর মরামতি আর বৃদ্ধি হয়ে কিন্তু অর্ধ বিভাজন কেবল যুগ্মক সৃষ্টি উদ্দিষ্ট বুঝলা। তেণু এই যে সমবিভাজন কোষ বিভাজন ସବୁଠାରୁ লংগেস্ট ফেজ হচ্ছে কিয়ে প্রোফেজ। প্রোফেজ হচ্ছে ସବୁଠାରୁ লংগেস্ট ফেজ বুঝলা। এবং অর্ধ বিভাজন এই প্রোফেজ কু বিভিন্ন উপঅবস্থায় বিভক্ত করা হয়েছে। আদ্য অবস্থা 1 কু ହେଲା ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ପାଚିଟିନ୍ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଡାଇଆକାଇନେସିସ୍ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 88 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆସୁଛି ଏବଂ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆସିଛି deficient secretion of which hormone from pituitary gland causes diabetes insipidus ବୁଝିଲା। डायबिटीज insipidus डायबिटीज ଦି ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଛି डायबिटीज गोटे रोग नुहे एटा हूँ गोटे कौन हर्मोन कम क्षरण जनित गोटे अवस्था बुझेगा। तेणु डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज इंसिपिडस आमर डायबिटीज मेलिटस पानक्रियाज जो बीटा सेल अच्छी इन्सुलिन अभाव में डायबिटीज मेलिटस जहाँ को आम कहे मधुमेह शर्करार परिमाण जो रक्त वृद्धि होता है कहुए डायबिटीज मेलिटस बुझेगा मधुमेह रोग। किंतु जितेबाला पिट्यूटारी जो पोस्टेरियर ग्लैंड अच्छी पोस्टेरियर लोब से एडीएच जहाँ को आम कहे तार अन्य नाम हूँ भासोप्रेसिन आंटी डियूरेटिक हार्मोन तार अन्य नाम कौन भासोप्रेसिन। ये भासोप्रेसिन पिट्यूटारी कौटू ना पोस्टेरियर लोब रु सिक्रेशन होता है एवं भासोप्रेसिन एडीएच हार्मोन बा भासोप्रेसिन अभाव में बहुमूत्र रोग कौन होता है बहुमूत्र रोग होता है जहाँ को आम कहे डायबिटीज इंसिपिडस कौन कहे डायबिटीज इंसिपिडस। तेणु डायबिटीज इंसिपिडस कहीं हॉर्मोन सिक्रेशन अभाव में होता है ना इंसुलिन अभाव में डायबिटीज मेलिटस भासोप्रेसिन अभाव में डायबिटीज कौन इंसिपिडस। तेणु सठिक ऑप्शन है कौन ऑप्शन बी कौन ऑप्शन बी ये क्वेश्चन आस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो देती few large and elongated cells of testis supplying nourishment to the developing spermatocytes are केउ टेस्टिस रो केउ कोष वर्धित शुक्राणुर वृद्धि पाई पोषक जोगाई थाए। ताले टेस्टिस रे दीटा कोष अछि गोटे ला सप्टेली कोष आ गोटे ला लेडी कोष। लेडी कोष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आमर पुरुषर लिंगीय लक्षण प्रकाश में साहाय्य करता है एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभाव में नपुंसकता देखा जाए थाए। এই যে সপ্তলি কোষ থাকে সাধারণত এই বৃহৎ কোষ থাকে এইভাবে কোষ যাহাকে আমি কହୁଛେ সপ্তলি কোষ। সেই সপ্তলি কোষ কোন করে না শুক্রাণুকু নিউট্রিশমেন্ট যোগাই থাকে যাହା ফলে শুক্রাণু কোন হইଥାଏ না ଆମର ম্যাচিউর শুক্রাণুরে পরিণত হইଥାଏ। সপ্তলি কোষ কোন করে না তাକୁ পোষକ যোগাই থাকে। তেଣু অপশন ଅଛି কোন
सर्टली कोष कि कोष सर्टली कोष आमर ए जो सप्लाई न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्माटोसाइट जहाँ फल से गोटे कौन ना शुक्राणु रे परिणत होता है बुझेगा तेणु सठिक आंसर हूँ सर्टली कोष ए क्वेश्चन आंसर आम दे पारिबा कौन आम दे पारिबा बुझेगा नेक्स्ट देख आम रिलेटेड क्वेश्चन देखो एटा when does erythroblastosis foetus takes place ମୁଁ କହିଥିଲି RH antigen ର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ରକ୍ତ ରୋଗ RH ପଜିଟିଭ ଆଉ RH କଣ ନେଗେଟିଭ କେତେବେଳେ erythroblastosis foetus ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ male with RH positive marriage with a female with RH negative बापा जदि हजबैंड रहा RH पॉजिटिव स्त्री जदि RH नेगेटिव से जो ऑप्शन सृष्टि है तार है बापार ब्लड ग्रुप सहित समान RH पॉजिटिव ताले जिते बेले गोटे फोइटस RH पॉजिटिव हेतिबो तार मां हेतिबो RH नेगेटिव सेही फोइटस को कुआ जाए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस ताले एते देखो देइची when does erythroblastosis foetus takes place mother with RH positive blood and foetus with RH positive no mother with RH positive blood and foetus with RH negative blood no mother with RH negative and foetus with RH positive एटा हला सठिक ऑप्शन मदर हला नेगेटिव संतान होची पॉजिटिव कहीं ना बापा होची पॉजिटिव बापार जो एंटीजेन टा संतान रक्त वर्ग सहित समान किंतु संतानटी का देहरे रहिला मार गर्भरे रहिला सेते बेले संतानर जो पॉजिटिव एंटीजेन मां देह को चली गला मां देह रे पॉजिटिव एंटीजेन नथिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप माने RH नेगेटिव माने RH एंटीजेन नाही संतानर पॉजिटिव एंटीजेन मां निकट गला जा फल रे एई जो संतान को कुआ जाए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस जहाँ फल से रक्तहीनतार आनामिया डिजीज शिकार होता है एवं सिकिल सेल आनामिया ये रोगर कौन होता है शिकार होता है बुझेगा नेक्स्ट ए क्वेश्चन में आम कर फ्रॉम व्हिच सेल्स एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड केउ कोषरु एंटीबॉडी तयारी होउची टी लिम्फोसाइट टी सेल कपर सेल लिवर अच्छी प्लेटलेट्स अणुचक्रिका रक्त जमाट बांधे साहय किंतु प्लाज्मा सेल रु एंटीबॉडी फॉर्मेशन होउची बुझेला तेणु ए प्लाज्मा सेल कौन ना एंटीबॉडी बा एंटी सेरम तयारी करते कौन करता है एवं ए प्लाज्मा सेल सब कोडी थाए ना रक्त रे थाए लिवर रे फॉर्मेशन हेई थाए बुझेला नेक्स्ट देजी What is the diploid chromosome number in a person suffering from Down syndrome? Down syndrome में कितना क्रोमोसोम था? हैला गोटे ला क्लेनिप्रोन सिंड्रोम, गोटे ला टर्नर सिंड्रोम, आउ गोटे ला कौन नॉर्मल क्रोमोसोम हैला 46. ए डाउन सिंड्रोम कौन ना ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम ता माने गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहिता है ताले एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहितले कोन हबो ना एटा कुआ जा क्लेनिप्रोन सिंड्रोम यार क्रोमोसोम संख्या मध्ये 47 एथरे गोटे क्रोमोसोम कम अछि यार आकु कुआ जा टर्नर सिंड्रोम यार क्रोमोसोम संख्या 45 ये हला नॉर्मल क्रोमोसोम ये हला 46 बुझेला तेनु डाउन सिंड्रोम सेतरे केतिटा क्रोमोसोम थाए 47 टा क्रोमोसोम केतिटा थाए गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थाए बुझेला ये हो कोन ये क्वेश्चन भी हमें करि परिबा तेनु ये जो क्वेश्चन देखो एटा हम 10 श्रेणी रो आसी एटा भी बोर्ड रे पढुची सब 10 रे which hormone is secreted from pineal gland when exposed to darkness पेनियाल ग्रंथि रु केउ हार्मोन क्षरण हुए पेनियाल ग्रंथि फर्स्ट ऑप्शन देछि मेलाटोनिन हार्मोन क्षरण हुए बुझिला जा को जा बायोलॉजिकल क्लॉक
ଶରୀରର ଜୈବିକ ଗଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମର ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। କିଏ? ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉଥିରୁ କଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ମେଲାଟୋନିନ୍। ମେଲାଟୋନିନ୍ କଣ? ମେଲାନୋସାଇଟ୍, ଯୋଉ କଳା ଯାଇ, ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ କଳା ଯାଇ, ଯୋଉଟାଇ ମେଲାନିନ୍ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ସେଇଟା କଳା ପଡିଯିବ। ଆମ ଚୁଟିରେ ମେଲାନିନ୍ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଦାଢି ନିଶ ଏଠି ମେଲାନିନ୍ ର ପରିମାଣ, ତେଣୁ ଏଟା କଳା। ତେଣୁ ମେଲାନୋସାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ କଳା ଯାଇଟା ସେଟା ମେଲାନିନ୍ ଅଧିକ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ମେଲାନୋସାଇଟ୍ କୋଉଠୁ କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ? ନା ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରୀରର କଣ? ଜୈବିକ ଗଢ଼ି। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ପିଟ୍ୟୁଟାରିର ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଲୋବରୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ଯାହାକୁ ବାହାର ହରମୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ବିଟା ସେଲ୍, ପାନକ୍ରିଆସର ବିଟା ସେଲ୍। ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଆମର ଓଭାରି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଅପସନ ହେଲା କଣ? ମେଲାଟୋନିନ୍। କଣ? ମେଲାଟୋନିନ୍, ବୁଝିଲା? ଏ क्वेश्चन ବି ଆମେ आंसर देबा। देखो, ए मोटर नर्व कैरीज इंपल्स फ्रॉम। मोटर नर्व कौन? स्नायु कोश दी प्रकार, गोटे है संज्ञा बही सेंसरी नर्व, गोटे है आज्ञा बह मोटर नर्व। आज्ञा संज्ञा बह किए ना जी रिसेप्टर ठू ब्रेन निकट को वार्ता नब, ताकू कह जाए सेंसोरी अफेक्टर। जी ब्रेन रु कार्यकारी अंग निकट को आनिब ताकू कह जाए मोटर बा इफेक्टर। कौन कह जाए? इफेक्टर। ताले ये ऑप्शन कौन अछि? देखो, ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन, नो रिसेप्टर ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन ब्रेन रु इफेक्टर ऑर्गन पाखु जे वार्ता आने, इफेक्टर ऑर्गन कौन एटा कहीं हला नहीं? ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन माने ग्राही अंग। ग्राही अंग किए? चर्म, आखि, नाक, कान, जीव, एमाने होचंदी कौन? ग्राही अंग। जी प्रथम इम्पल्स को ग्रहण करेंगे, तेणु ताठार संज्ञा स्थायी माध्यम मस्तिष्क निकट वार्ता जीव, मस्तिष्क निकट आदेश आसब। इफेक्टर ऑर्गन है कौन? मांसपेशी। तेणु मस्तिष्क निकट वार्ता जी मांसपेशी निकट को आनब, पिन कटाटा फोड़ी गला, बुझेगा? से वार्ता आसला कार्यकारी अंग मोटर न्यूरॉन द्वारा। ताहले मोटर न्यूरॉन क्या कहला ना ब्रेन टू इफेक्टर कौन? ऑर्गन। ये हूँ कौन? सठिक आंसर। तेणु चारिटा ऑप्शन आमको समान लगे, किंतु ता भितर गोटे ऑप्शन सठिक उत्तर। तेणु आम दशम पढ़ुले भी आम 10टा क्वेश्चन 12टा क्वेश्चन कर ओएसटी, जहाँफल एबेठार आम प्रिपेरेसन है। जो मैंने सब प्रायतः मु एग्जामिनेशन हॉल बसी, से एग्जामिनेशन हॉल पाखापाखि 80 ରୁ 100 पिला बसती। मुझे अनईदेली मो पछक चारिड़े सबू होती लेडीज, ताने झील पिला माने एजुकेशन लाइन को अधिक आउछंती। कहीं यहाँ हूँ सबठार सिक्यू, बुझेगा? तेणु आम एबेठारू आमर प्रस्तुति आरंभ करवा जे मत गोटे टीचर हेबार अच्छी बा गोटे लेक्चर हेबार अच्छी, से अनुसार वर्तमान सब कॉम्पिटिटिव हो गला। मु एंट्रांस देवी, एंट्रांस क्वालिफाई कले चाकरी करी, टंकाटे खर्च करार ना, टंकाटे देवार ना। मोर जदि कौन अच्छी पाठ पढ़ी, मो मुंडे बुद्धि अच्छी, ताले मु क्वालिफाई करी एवं चाकरी निश्चित करी। से धनी गरीब ये सब किसी देखा ना, चाकरी ओनली बिकज ऑफ योर टैलेंट, कौन? टैलेंट में, बुझेगा? तेणु आमको से भाया पूर्व प्रस्तुति सहित परीक्षा को जावाक पड़ो, बुझेगा? से बोर्ड एग्जाम को गले भी आम आम प्रस्तुति सहित जावाक पड़ो एवं आमर हार्डवर्क, कौन? हार्डवर्क, बुझेगा? मुझे आहरी कौन आउटे दे जाती कौन ना परिश्रम करता, मुझे कौन 90 ठारू भी आहरी 120-130 नंबर भी रखी था, बुझेगा? तथापि आमको से भाव में कौन करा पड़ो? पूर्ण प्रस्तुति होगा पड़ो एवं बोर्ड एग्जाम से भाव में प्रिपेयर होगा। जेकोसी एग्जाम आम पूर्ण प्रस्तुति सहित जावा, जहाँफल आमर ओएमआर मोर जो क्वेश्चन